Welcome students. Now see, if terms of AP are given, it means A1, A2, A3, A4, etc. It means if A is given, number of terms are known and the common difference D are known. It means A, N and D are known. And if we have to find sum of terms यानी ऐसे, यानी किसी एपी में यदि ए एन और डी फाइंड है और उस एपी के जितने भी टर्म्स हैं, उस एपी में जितने टर्म्स यूज हुए हैं उन सब का सम फाइंड करना हो तो यहां हम यूज कर सकते हैं एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यानी इस फार्मूले के बेस पे हम किसी एपी के टर्म्स का सम फाइंड कर सकते हैं और इस बेस पे यहां जो है आप अपने एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट देखिए। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का द क्वेश्चन इज गिवन एज 2, 7, 12 up to 10 terms. It means first term of this AP is 2, D equal to A2 minus A1. It means 7 minus 2 equal to 5 and number of terms are given 10. It means n equal to 10 and we have to find Sn. So Sn equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. Here n equal to 10 by 2. 2 into a equal to 2 plus n, it means 10 minus 1 and d equal to 5. So it is 10 by 2 equal to 5. 2 2 are 4. 10 minus 1 9, 9 5 are 45. So 5 45 and 4 49. आप 49 को 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे to 45 will be now see question number second. Here given that 7 plus 10 into 1 by 2 plus 14 plus up to 84. It means here first term a equal to 7, d equal to 10 into 1 by 2, a2 equal to 10 into 1 by 2. So here d equal to a2 minus a1. It means 10 into 1 by 2 minus a1 7. 2 10 are 21, 21 by 2 minus 7. So 2 7 are 14, 21 minus 14 7 by 2 and the last term an is given 84. Here using an at first we have to find number of terms. It means an equal to a plus n minus 1 into d. N equal to 84, a equal to 7 plus n had to find and d equal to given 7 by 2. So 84 7 in left minus 7 equal to n minus 1 into 7 by 2. 84 minus 7 it is 77 and the 7 by 2 in left it will be 2 by 7 equal to n minus 1. So 7 to
77, 11 jar cancel. Here n minus 1 equal to 11, 2 jar 22. So n equal to 22 plus 1, it is 23. And now we have to find Sn. Here Sn equal to, अब यहां देखें, यदि फर्स्ट टर्म मालूम है, डी मालूम हो गया, एन मालूम हो गया और एन भी दिया हो, तो यहां हम यूज कर सकते हैं Sn इक्वल टू n बाई टू इंटू ए प्लस एन. इट मीन n 23 बाई टू और a यानी फर्स्ट टर्म 7 और एन लास्ट टर्म इज गिवन 84. सो 23 by 2, 84 and 7, 91. So it is, अब इसका प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे 23 और 91. तो 91 और 23 का प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे. 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, 3 9 8 2 10, 1 1 2. यानी 91 और 23 का प्रोडक्ट जो है वह 2093 हो गया. 2093 अब बाई 2 डिवाइड कर लेंगे. 2 1 जार 2 0, 2 4 जार 8, 2 6 जार 0.5 विल बी आंसर. इस तरह से यदि किसी एपी का फर्स्ट टर्म मालूम हो, जो है डी मालूम कर ले और एन दिया हो, तो सबसे पहले हम एन निकालेंगे, एन फाइंड करेंगे और एन फाइंड हो गया तो Sn इक्वल टू n बाई टू इंटू ए प्लस एन, वेयर एन इज द लास्ट टर्म. यूज करके हम सम ऑफ टर्म्स यानी Sn फाइंड कर सकते हैं. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट. हियर A इक्वल टू गिवन 5, D equal to 3 and AN equal to given 50, and we have to find N and Sn. According to question, A equal to 5, D equal to 3, AN equal to 50, and we have to find N and Sn. So using AN equal to A plus N minus 1 into D. Here AN equal to 50, A equal to 5 plus N have to find minus 1 and D equal to 3. So 55 in left minus 5, N minus 1 into 3. So here 50 minus 5 45 अब by 3, या 3 जो है लेफ्ट में आएगा डिवाइड हो जाएगा. सो n minus 1, इट मीन n minus 1 45 by 3 यानी 15. सो n इक्वल टू 15 प्लस 1, इट इज 16, यानी n जो है 16 हो गया. नाउ वी हैव टू फाइंड Sn. Sn equal to n by 2. Here also last term are known. So n by 2 into a plus an. Now n equal to 16 by 2. A equal to 5 and an is given 50. 16 by 2 it mean 8. 50 और 5 55 हो गया. प्रोडक्ट इसका हो जाएगा 440. इस तरह से Sn हो गया आपका 440. सिमिलरली सी क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड. हियर गिवन दैट A इक्वल टू 7, A13 equal to given 35, and we have to find D and S13. यानी A equal to 7, A13 equal to 35
और हमें D और S13 का वैल्यू फाइंड करना है। सो यूजिंग ऑलरेडी गिवन दैट A13 इक्वल टू 35। अब यहाँ जो है A13 के प्लेस पे हम A प्लस 12D लिख सकते हैं इक्वल टू 35। और A का वैल्यू दिया है 7 प्लस 12D इक्वल टू 35। सो 12D इक्वल टू 35 अब माइनस 7। सो 12D इक्वल टू 28 एंड D इक्वल टू 28 by 12। 4 3 जार एंड 4 7। सो D इक्वल टू हो गया 7/3, यानी D का वैल्यू हमने 7/3 फाइंड कर लिया। नाउ हमें जो है S13 निकालना है, तो S13 इक्वल टू यानी Sn इक्वल टू n/2। लास्ट टर्म यहां फाइंड है, सो A प्लस an लिख दें, यानी S13 के प्लेस पे n के प्लेस पे हम 30 लिख देंगे 13/2। A का वैल्यू ऑलरेडी दिया है 7 और an यानी लास्ट टर्म दिया है 35। नाउ इट इज 13/2 इंटू 35 और 7 क्या हो गया 42 और 2 से 42 कैंसिल हो गया 21 जार। नाउ 13 1 जार 13 3 in n 1 और 13 2 जार 26 1 27। इस तरह से यानी Sn हमें यानी S13 फाइंड करना है, तो Sn लिखेंगे Sn इक्वल टू n/2 इंटू A प्लस an, क्योंकि लास्ट टर्म में A13 हमें फाइंड है। नाउ S13 इक्वल टू 13/2, A के प्लेस पे 7 लिख दिए, an के प्लेस पे 35 लिख दिए, तो 35 और 7 42 हो गया। 2 से 42 कैंसिल करा दिए 21 जार। अब 21 3 जार 63 इन एंड 6 और 21 1 जार 21 और 6 27। इस तरह से जो है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3rd। A12 is given 37, D equal to 3 and we have to find A and S12। अब देखिए यहाँ S12 दिया हुआ है, S12 दिया है, D दिया है, A और S12 फाइंड करना है। A12 दिया हुआ है, तो A12 के प्लेस पे हम जो है A प्लस 11D लिख दें इक्वल टू हो गया 37 और A11 और D का वैल्यू दिया है 3 इक्वल टू 37। सो A इक्वल टू 37 माइनस 11 3 जार 33। सो A इक्वल टू हो गया 4, यानी A का वैल्यू हम 4 निकाल दिए। नाउ Sn इक्वल टू n/2, चूंकि S12 फाइंड करना है और A12 दिया यानी लास्ट टर्म दिया है, सो A प्लस an। हियर n के प्लेस पे हो गया 12, क्योंकि हमें S12 फाइंड करना है, तो n के प्लेस पे 12/2 लिख दिए। A के प्लेस पे A हम फाइंड कर चुके हैं 4 और an यानी लास्ट टर्म दिया है 37। सो 12/2 यानी 6 और 4 और 37 ऐड कर लिए 41, तो 6 1 जार 6 और 6 4 जार 24, यानी S12 हो गया 246। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में here A3 is given 15, S10 is given 125 और हमें जो है D to find D and A10। अब देखें तो यहां जो है इसमें A13 का वैल्यू 15 दिया है, S10 दिया है 125, D और A10 फाइंड करना है। तो सबसे पहले A3 के प्लेस पे
हम a प्लस 2d इक्वल टू 15 लिखते हैं। फिर s 10 दिया है, यानी n इक्वल टू दिया है 10, तो यूजिंग Sn इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d हुआ। तो S12 यानी S10 का वैल्यू दिया 125 और n के प्लेस पे हम 10 लिख दें बाई 2 a का वैल्यू है, a का वैल्यू फाइंड नहीं है तो यहां पहले वही रहने दें 2a प्लस n के प्लेस पे 10 माइनस 1 और d का वैल्यू भी फाइंड नहीं है। नाउ यहां जो है 125 10 बाई 2 यानी 5 हो गया, यहां हो गया 2a प्लस 10 माइनस 1 यानी 9 d हो गया। अब देखें तो यहां जो है 125 5 इधर आएगा लेफ्ट में डिवाइड हो गया और यहां बच गया 2a प्लस 9d। तो 2a प्लस 9d को हम a प्लस 2d प्लस a प्लस 2d प्लस 5d लिखते हैं। 2a प्लस 9d के लिए हम a प्लस 2d प्लस a प्लस 2d यानी a 2a 2d और 2d 4d हो गया और प्लस 5d लिख दिए। अब 125 बाई 5 तो 125 बाई 5 यानी 25 हो गया इक्वल टू a प्लस 2d के लिए जो है हम 50 लिख दिए और फिर a प्लस 2d के लिए 15 लिख दिए और प्लस हो गया 5d। तो यहां हो गया 25 15 और 15 30 माइनस 30 लेफ्ट में इक्वल टू हो गया 5d, यानी 5d इक्वल टू हो गया माइनस 5। सो d इक्वल टू माइनस 5 बाई 5 इक्वल टू माइनस 1, यानी d का वैल्यू हो गया माइनस 1। नाउ हमें a10 फाइंड करना है और a10 इक्वल टू होता है a प्लस 90 हियर a। अब a का वैल्यू तो फाइंड करना है, a का वैल्यू नहीं मालूम है तो पहले जो है हम इस d का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दें a प्लस 2d इक्वल टू है 15। तो a प्लस 2 d का वैल्यू माइनस 1 इक्वल टू 15 हो गया। यहाँ हो गया d a माइनस 2 इक्वल टू 50। a प्लस 2d इक्वल टू 15 में d के प्लेस पे माइनस 1 पुट कर देना क्योंकि d का वैल्यू हम माइनस 1 फाइंड कर चुके हैं। तो a प्लस 2 इंटू माइनस 1 इक्वल टू 15, a माइनस 2 इक्वल टू 15। सो a इक्वल टू 15 प्लस 2 इट इज 17। अब हमें a10 का वैल्यू फाइंड कर देना है। नाउ a10 इक्वल टू होगा a प्लस 9d, a का वैल्यू 17 9 और d का वैल्यू माइनस 1, यानी इस तरह से यह हो गया 17 माइनस 9 यानी 8, यानी a10 का वैल्यू जो है 8 हो गया और ये हो गया 10। इसी तरह से जो है नेक्स्ट प्रॉब्लम आपका प्रॉब्लम नंबर 5। अब प्रॉब्लम नंबर 5 जो है यहां दिया हुआ है प्रॉब्लम 5 में d इक्वल टू 5, d का वैल्यू 5 है और S9 इक्वल टू गिवन 75 and we have to find a and a9 to find a and a9 here d और S9 का वैल्यू दिया है तो यहां जो है यूजिंग Sn इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d हुआ। अब देखें तो Sn के प्लेस पे हम 75 लिख दिए n बाई 2, यहाँ हो गया 2a प्लस n के प्लेस पे 9 लिख देंगे, यहाँ भी n के प्लेस पे 9 लिख दें 9 बाई 2, क्योंकि S9 का मतलब कि n इक्वल टू 9 है। तो यहाँ
2a प्लस n 9 माइनस 1 और d का वैल्यू ऑलरेडी दिया है 5। नाउ 75 9/2 को लेफ्ट में लाएंगे 2/9 इक्वल टू हो गया 2a प्लस 9 माइनस 1 यानी 8 5 जार हो गया 40। अब यहां सिंप्लीफाई कर ले 3 3 जार और 3 से यह कैंसिल करा ले 25 जार, यानी अब इसको लिख सकते हैं यहां ऊपर 3 3 जार और 3 25 जार, तो 25 2 जार हो गया 50। अब बाई 3 और 40 को लेफ्ट में ला दीजिए तो हो जाएगा -40 इक्वल टू हो गया 2। नाउ 3 40 जार 120 और 120 में से 50 माइनस कर देंगे -70। अब बाई 3 इक्वल टू हो गया 2a और -70 बाई 3 और 2 को लेफ्ट में लाएंगे तो 1/2 इक्वल टू a। अब 2 से यह कैंसिल करा लें -35 जाए, इट मीन a इक्वल टू -35 बाई 3। a का वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, a इक्वल टू -35 बाई 3। अब हमें a9 फाइंड कर देना है, तो नाउ तो हमें a मिल गया और d दिया ही है, तो a9 इक्वल टू होता है a प्लस 8d। तो a का वैल्यू हो गया -35 बाई 3 प्लस 8 और d का वैल्यू ऑलरेडी 5 है, सो -35 बाई 3 और 8 5 जार 40। अब फिर अब 3 से 40 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 40 जार 120 और 120 में से 35 माइनस कर देना है तो यह हो जाएगा 85 बाई 3, यानी सो a9 इक्वल टू 85 बाई 3। इस तरह से जो है यहाँ d दिया था क्वेश्चन में, d दिया है, a9 दिया है, तो हम d5 जो है d इक्वल टू 5 s9 इक्वल टू 75, तो sn को यूज करके हम सबसे पहले a का वैल्यू फाइंड कर लिए -35 बाई 3 आ गया, और फिर a9 इक्वल टू a प्लस 8d यानी a9 हो गया 85 बाई 3।